That is from Z to A, reciting reverse alphabets in French from Z to A, and the fastest one in 10.10 seconds. How did you prepare yourself for this activity? Actually, it takes around, in the direct order from A to Z, we know everybody can say. But in reverse order, we have to prepare a lot. So it took me 15 to 20 days to practice again and again, again and again. And even I could break my record also. Thank you so much. Thank you. हमें अपने रिकॉर्ड के बारे में कुछ बताएं. I think Advita is quite capable enough to tell her about her own record because she has been quite expressive right from the age of 2.5 years, and she has lot of many records in other book of records also. Advita, tell about your record. Which record? Yes, I have. Hi everyone, I'm Advita Tivrekar and I hold the record in India Book of Records and Asia Book of Records for narrating 206 bones of the adult human body along with their names, numbers and other relevant information at the age of 4 years and 3 months, and I'm titled as Grandmaster for that. So, thank you so much, Advita. Thank you. All the best for future endeavors. You may take your seat. So thank you. Next, I you. would like to call. So, please share a few words about your record. Good morning, everyone. I am an Indian-based academician working as a professor in the Department of Mechanical Engineering of Vidyavardhaka College of Engineering, Mysore, Karnataka State. Initially, I wish to thank India Book of Records for nominating me. Thank you very much. So, I have been selected for India Book of Records for 7 to 8 major achievements. First and the foremost thing, I have been awarded over 250 state, national and international awards, and having affiliations with over 150 nations all over the globe. Secondly, I have over 3,500 online certifications from all parts of the country. Next, I have been invited as the editorial board member and reviewer for over 250 national and international journals. Next, starting from 1993 till date, I have published over 3,000 scientific articles in the field of science, communication and engineering. Also a very staunch astronomy promoter and set up a small observatory at Mysuru, which I am promoting astronomy in all parts of the nation. Next, I have been selected for IBR Achiever for publishing over 2,000 research papers in national and international journals, and summarizing all my achievements, I have been selected as IBR Achiever. Thank you very much. Can you explain about your record to us? Yeah, first of all, thank you so much, whole IBR team, for taking this opportunity, and I'm feeling very blessed कि मेरे को ऐसा मौका मिला that Gayatri Mantra chanting regarding. I just want to tell you that I did Gayatri Mantra chanting for 24 hours. It was stand still position. For 24 hours, I didn't move. I was doing on a continuous basis, and उसके साथ impact क्या था basically ये एक vibration है. मेरा motive क्या था कि गायत्री मंत्र की पावर जो ऋषि मुनि ने बताई थी उसको जस्ट पास ऑन करना था. एंड मैं कैसे कर पाया, मैं बोलना चाहूँगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यू कैन डू एनीथिंग. एंड मैं साउंड पर बहुत रिसर्च कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होती है, एंड आपका ऑरा क्या होता है. तो गायत्री मंत्र के बारे में मैंने पढ़ा होता है कि इफ़ यू वांट टू गेट spiritual benefits or material benefits, then the Gayatri Mantra has that power that can take you in another level. तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, और गायत्री मंत्र मैं बचपन से चैंट भी करते हुआ आ रहा था. तो 24 घंटे मैं लगातार एक पोजीशन में बैठ के बिना मूव करे, बिना आंखें खोले, बिना कुछ वहाँ से कुछ किए हुए लगातार उसको चैंट किया था. उसके बाद जो वाइब्रेशन मुझे फील हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा मोटिव है लोगों को सर्व करना, तो उसका एक पार्ट था. और सबसे अच्छी बात यह है कि IBR टीम के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको पास ऑन करने के लिए, बिकॉज मेरा मोटिव है लोगों को सर्व करना, लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड
खुशियों को एक्सपेक्ट करना और उसका एक मौका मिला IBR टीम से, तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी होल IBR टीम का। और मैं जस्ट एक आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे साउंड फ्रीक्वेंसी मैच करती है या कैसे आपको आपके ऑरा को चेंज करी होती है। तो मैं यहाँ पर 3 आपको प्ले करके दिखाऊंगा। उसका मोटिव क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आप अलग अलग फील करेंगे। तीनों का साउंड आपने देखा होगा कि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे फ्लो किया था। इट मीन्स क्या था कि आपके हर फ्रीक्वेंसी में आपके अंदर अलग अलग वाइब्रेशन पैदा हो रही होती है। तो इसका मेरा मोटिव है कि साउंड फ्रीक्वेंसी या अपने शब्दों के थ्रू आप अपनी लाइफ में और अपनी किसी और पर्सन की लाइफ में आप पॉजिटिविटी और उस एनर्जी का संचार कर सकते हैं। तो इस पर मेरी रिसर्च भी चल रही है और मैं फिर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरी टीम का कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर ये इसको शोकेस करने का और अपने थ्रू लोगों तक एनर्जी पास ऑन करने का। थैंक यू सो मच। हमारा एक्सपीडिशन जो गया था वो माउंटेनियरिंग के लिए गया था। एक यूनम नाम की पीक है लद्दाख और मनाली रोड के ऊपर, जो कि 20,910 फीट हाइट की है। उस पीक को लेके हम 100 बच्चों का ग्रुप लेके गए थे। उसके अंदर 22 बॉयज़ थे, 22 डिसेबल्ड बच्चे थे और बाकी सारी लड़कियां थी। तो एक बड़ा ग्रुप था हमारा जिसको मनोहर लाल खट्टर जो आजकल सेंटर में मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें फ्लैग ऑफ किया था 2022 में। पीक क्लाइम करने के बाद में जो 20,000 फीट की पीक है उसको क्लाइम करने के बाद जब हमारी टीम वापस आई तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ यूनिक सा किया जाए। तो हम पूरी टीम में से 68 लोगों को लेके, क्योंकि बाकी सारे फिट नहीं थे, क्लाइम करने के बाद 68 लोगों ने फिर दोबारा से क्लाइम करके बड़ालाचा पास पे 15,910 फीट पे 21 जून 2022 यानी कि इंटरनेशनल योगा डे था जिस दिन, उस दिन उन्होंने उस हाईएस्ट अल्टीट्यूड के ऊपर योगा परफॉर्म किया। ये हमारी अचीवमेंट है। और 15,910 फीट आप समझते हैं कि सियाचिन की हाइट से भी ज़्यादा है। तो सब जीरो टेम्परेचर के अंदर हमारे 68 बच्चों ने और टीचर्स ने ये अचीवमेंट अचीव की। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। मेरे साथ में मिस्टर राम कुमार जी थे, हमारे को लीडर। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं जो पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी अपने हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सभी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, ये थाउजेंड्स बच्चों को ये एक्टिविटी करवा चुके हैं। नॉट ओनली इन हिमाचल, उत्तराखंड हो, कोस्टल ट्रैकिंग हो, चाहे अपना केरला हो, तमिलनाडु हो, और दार्जिलिंग है, जैसलमेर है,
डिफरेंट टाइप के जो नेचर स्टडी के प्रोग्राम्स हैं वो बच्चों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, हरियाणा स्टेट इज़ द ओनली स्टेट जहां एडवेंचर के प्रोग्राम और एक्सपीडिशंस के प्रोग्राम बच्चों के लिए किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात तो ध्यान में आई, इससे 2022 का जो ये आप हमें एक रिकॉर्ड के लिए रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। इसके पहले 75 बच्चों का एक ग्रुप यूनम पीक पर गया था और 75 मीटर का नेशनल फ्लैग वहाँ पर हमने प्रदर्शित किया था पूरी टीम ने। लेकिन हमें पता नहीं था कि उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, तो तब किसी ने बताया, तो फिर नेक्स्ट टाइम हमने योगा के लिए अप्लाई किया। Thank you so much. Thank you. You're adding a lot to this. Anjala, please share a few words about your report. So, namaste everyone. I am Kansala Srimanth Raj and I am studying in 9th standard. So, do you know that we can make India the richest country in the world by doing such simple things that you can buy the normal groceries things in your daily life by only buying Indian products. I have been inspired this from Narendra Modi's speech in the Man Ki Baat, where he told vocal for local, lucky kal ke liye local, where he told it nothing means that to buy only Indian products which are made in India and make in India. So if we buy only Indian products which are made in India, we can increase our economy and also our GDP. So after I have designed this app by inspiring from Narendra Modi's speech, so that everybody can buy Indian products. In the app there are only Indian products registered and only Indian products are encouraged, so that everybody can also buy Indian products. And I also included a quiz and also games so that everybody gets encouraged. So after submitting this program into a competition called NCRC National Coding Robotics Challenge, in that competition I have been selected in this level 2. In the level 2 they asked me to make a robot. So I made a robot called the Shreyas the Caring Bot, which is used in the pandemic time in the schools. So it will read the temperatures of the students so that nobody is affected of the ill student, and also it sanitizes the classes periodically so that it will maintain hygiene, and also it will make it will also give masks to the students whoever sneezes it, and also they can throw the old mask in the bin so that they can sanitize their hands and also keep a new mask. For this, after submitting this project, for this they have awarded me the national first in the senior category of the NCRC. So in the they also awarded me the IBR record, which is for record that an innovative robot made by a child. अपने रिकॉर्ड के बारे में हमें बताएं. So I have made an drone, FPV drone, which is one of its kind in India. Yes, and it has a range of 1 kilometer each. How did you make it? I made it on my own. Yeah. आपकी कोई future goals? So future goals to work in R&D. Thank you so much, Vaibhav. Thank you for your time. My name is Purvika Dungawal. I'm from Delhi. I study in PP International School. I am so happy to be here today. I have learned about teacher and it was so much fun. I learned about big animals, small ones, and even creatures that live in the ocean and sky. Thank you, my parents and teachers, for helping me to learn. I thank IBR to give me the platform to show my talent. Thank you. Thank you. Please share a few words about your record. Good afternoon, everyone. I am ADNS Prasad from Vijayanagara, Andhra Pradesh. I am collecting stamps, currency on different themes. On Gandhi theme, I collected more than 140 countries' stamps till now. Okay, sir. How did you get this idea of making such a record? From childhood, my father is a postmaster
from childhood I saw different stamps. After seeing stamps on Gandhi released by different countries, Any message that you would like to give to our audience? everyone must have a good hobby. Then only. I am Jayshree Venugopal from Kerala, conducting online and gallery digital painting exhibition from 2001 onwards, based on ethical lines from proverbs, wise sayings, holy books, my own words, riddles, etc. Any advice or message that you would like to share with our viewers? Yeah, I like to say everybody that we can work for Lauka Samasta Sukhino Bhavandu. So I am having that motto and I am doing my work like that. Few words about your record with us. Good afternoon, everyone. I am Neetu Verma from Rewa MP, Madhya Pradesh. Myself Seema Singh from Delhi. हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था अपना लिवर डिटॉक्स का करके, एंड 9 फरवरी को जो है 9 फरवरी को हम लोगों ने अपना बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया रिगार्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इंट्राहेपेटिक स्टोन जो है वो रिमूव फ्रॉम लीवर, यानी कि लीवर से हम लोग नेचुरली कैसे निकालते हैं स्टोन को, वो हम लोगों ने किया। एक ग्रुप में 7 लोग किए थे, तो ग्रुप में करीब 36 लोग थे जो कि ऑल ओवर इंडिया से थे, और हम लोगों ने अपने अपने घर पे रख के लीवर डिटॉक्स किए नेचुरली, और अच्छा रिजल्ट भी अच्छा आया उस लीवर डिटॉक्स का। इसी में हम लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया। आप हेल्थ के रिगार्डिंग हम सबको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैम, हेल्थ के रिगार्डिंग ये बोलना चाहेंगे कि नेचुरली जो है, अगर हम नेचुरली चाहें तो हर डिजीज को रिकवर कर सकते हैं, रिवर्स हो सकता है अगर हम नेचुरल वे में जाएं तो, है ना। कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो कि हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब 90% जो है नेचुरली हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेडिसिन की ही लास्टली स्ट्रेस नहीं लेना है, जो सबसे बड़ा रीज़न है डिजीज़ का वो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस फ्री रहें तो डिजीज़ से अपने आप ही मुक्त रहेंगे। थैंक यू। लीवर को कैसे डिटॉक्स किया था, अगर कुछ थोड़ा संक्षेप में आप बताएं, कैसे लीवर को प्राकृतिक रूप से कैसे किया था आपने डिटॉक्स? जैसे कुछ हम लोग नेचुरल मेडिसिन जो है वो बनाए, ठीक है। जैसे अपना एप्सम सॉल्ट होता है, ऑलिव ऑयल होता है, इसको फिक्स टाइम पे जो है वो फिक्स टाइम पे 35 लोगों ने अपना किया कि फिक्स टाइम पे उसके डोजेज होते हैं कि इतने डोज जो है हमको, जैसे इस टाइम में 2-2 घंटे बाद 2-2 घंटे बाद 2-2 घंटे बाद लेना है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है आपके स्टूल पास होंगे स्टोन्स। जैसे क्या होता है, लोग बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ, बट गॉल ब्लैडर में स्टोन आया कहाँ से? आता तो है लीवर से ही। मेरा जो लीवर है, जिस क्वालिटी का लीवर है वही तो वो बाइल जूसेस बनाएगा, और जो बाइल जूसेस बनाएगा वो लीवर में गॉल ब्लैडर में जाए, तो वही चीज़ हमारा गॉल स्टोन बनता है। अगर हम लीवर को डिटॉक्स करेंगे तो गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनेगा। Thank you so much. Please share a few words about your record. Yeah, sure. How did you get the idea of making such a record? Sure. First of all, my name is Mrityunjaya Chakravarti and I belong from Jharkhand, Bokaro Steel City, presently staying at Kolkata. My idea to, I have made the record in writing maximum longest words in 1 minute. And the idea was, I am very much inclined in writing, any kind of writing, and even I am in the process of writing one book. So writing is something like, you are solely dependent on yourself. Other factors, you can go extra mile actually, and other outside factors are not dependent. So if you really work hard, this field is something like you can really excel. So there was a zeal, there was a fire from inside to do something, earn a name for myself. So I kept practicing, and still that fire is there to achieve even more in future.
Thank you so much. All Okay. the best for future endeavors. Thank you. Okay, ma'am. Hi everyone, I'm Pallavi Rani and I'm a fashion designer and artist. I have made a record of making 63 different types of traditional art forms. What was the inspiration behind making such a record? Ma'am, I love traveling. So when I started traveling, different cultures, different art were my inspiration. Thank you so much, Pallavi. Thank You you. may take. So, Pawan, please share a few words about your record with us. Hello everyone. Actually, I'm a businessman. Hello, I'm a businessman, and I have the record for the minting the maximum number of transaction sheets of checkbooks for maximum years. Sir, what was the inspiration behind such a record? I'm keep on maintaining, and everybody knows this thing. Any message, sir, that you would like to share with our viewers? One have to maintain each and everything. I hope so. Thank you so much, sir. Thank you for your words. We did this record on Indus River, that is one of the highest rafting point, and we did it from 16,000 feet. We started from 16,000 feet and we finished at around 12,000 feet. So that was around 222 kilometers, and my only aim was to break the previous record, which was of 210 kilometers, which was done in 54 hours. But I thought might as well make it difficult for others. तो मैंने सोचा कि 54 hours तो बहुत ज़्यादा है. I'll do it in less than 24 hours. So we completed in 23 hours, 30 minutes and 41 seconds. अगर आपको बताना चाहूँ कि वियतनाम में ये किस तरह से पूजे जाते हैं, किस तरह से फेमस हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वियतनाम के शाहरुख खान आपके सामने बैठे हुए हैं. तो वियतनाम के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है. वियतनाम के एंशिएंट आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और वियतनाम के एंशिएंट कल्चर को यहाँ तक भारत तक पहुँचाने और भारत के कल्चर को वियतनाम तक पहुँचाना इनका नेक्स्ट मिशन है. और इस मिशन के लिए ऑनर करते हुए प्रोफेसर चू बाओ क्यू को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से हम एक मोमेंटो प्रदान करते हैं. This is a very special memento from India Book of Records. And this is a symbol of unity between India and Vietnam for the cultural exchange of the ancient dying art in both the countries. And I thank you and congratulate you for your achievement and your coming here to India, and you accepted the invitation from India Book of Records. Now we will sign an MOU between India Book of Records of India and World Record Union, and along with Professor Chu Bao Kue for a mutual understanding between the two countries to exchange the cultural heritage in the countries. Thank you. Now the MOU will be signed. ये पेन का पेन का इंक का है पेन का. Anh cho anh xíu nha. Chấm mực nó chấm chiếc này là viết mực. X. Yeah, okay. Yeah.
Đây. Dạ, anh cứ ký ở đâu cũng được. Mija, this is Mija, not good. Yeah, this is. So congratulations, and for our first step towards exchanging Chúc the mừng cho cái cultural bước đầu heritage. tiên của việc trao đổi giao lưu văn hóa của hai quốc gia đã được thành công. And Ký kết thành công. before we conclude, Anh mở cái này any ra để cho final họ thấy message cái bản mình đã ký á. from Professor Chu Bao Kwei? Yeah. Really, any final message from you? Anh có chia sẻ gì tiếp không? Thôi, Dạ. đây là quả mẹ. Anh cũng nói lời cảm ơn người đó. Chu Bảo Quế từ Việt Nam sang rất là cảm ơn Dr. Vi và đất nước Ấn Độ, những lời chào trân trọng, một tình cảm sâu sắc nhất. Lúc đầu Chu Bảo Quế không biết nói gì thì cúi đầu đa tạ tất cả các vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Yeah. First of all, from the bottom of Professor Chu Bảo Quế, he want to especially thank you for Dr. Vishwarup for Miss Nija, India Book of Records, and working India Book of Records so that we can have a very successful today. And this is the our first exchange cooperation between two countries. So we hope that in very near future, our activity can keep going on. Thank you. और मैं तो खैर देख पा रहा हूँ और हाईवे पे गाड़ी है और ये पैसेंजर सीट खाली है पूरी तरह से और पैसेंजर सीट में बैठ के सिर्फ एक हाथ से अपना स्टीयरिंग को पकड़ के तब चलाते हुए आ रहे हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू बी न्यू रिकॉर्ड, लेकिन उसके लिए हम पूरा वेरीफाई करेंगे सारे इनके वीडियोज़ एंड सारे जो हमारे रिकॉर्ड पूरी करेंगे तभी उनका रिकॉर्ड देंगे। अब पूरा आ रहा है, बैठे से पैसेंजर सीट में है एंड कंट्रोलिंग द कार वाइल सिटिंग ऑन पैसेंजर सीट। इसमें ट्रैफिक रोकते नहीं आपको? ट्रैफिक पुलिस रोकते हैं, पूछते हैं और फोटो वोटो मेरा निकलते और छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, चलान नहीं हुआ इससे? अभी तक तो नहीं किया। आज आप लोग में से कोई ड्राइव करके चलान देख सकते हैं, चलान होता है कि चलान होना चाहिए। इनका तो नहीं हुआ, मुंबई से यहाँ तक आया। नहीं होना चाहिए। होना देखा नहीं होगा ना, नहीं नहीं नजरों में नहीं आया। नहीं, ये काफ़ी फेमस है इस चीज़ के लिए ऑलरेडी। हालांकि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्डर हूँ। नहीं ना फेमस, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ आप फेमस हो सकते हो, लेकिन एक्सीडेंट का 99% और चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि ब्रेक जो है और स्पीड जो है वो हालांकि एक्चुअली वो मेरे पैर में सब बैठता है और मैं यही नहीं, ये तो नॉर्मल है। मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन 11 साल हुआ मुझे, अलग अलग तरीक़ों से मैं कार चला लेता हूँ। ऐसे 10 है, ऐसा मैं रिवर्स भी चला लेता हूँ। आप लोग हाथों से चला लेते हो, भगवान की दया से मैं पैरों से चला लेता हूँ। आप ड्राइवर सीट पे बैठे होते हो
तो मैं साइड सीट पे भी बैठकर पैरों से चला लेता हूँ। अभी फ़िलहाल हमारा महाराष्ट्र में एक जारंगे पाटिल करके मोर्चा निकला था पुणे से मुंबई, तभी भी मैं वैसे ही गया था पैरों से। ऑल इंडिया मैंने रिवर्स कर चुका हूँ और अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये इनकी कला है। टैलेंट तो है सर, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है ना ये। आपके टैलेंट है, ठीक है। सर जी ऐसा तो कोई इसमें लिखा नहीं है कि गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठकर ही आप कार चलाइए। सर अगर ड्राइविंग सीट पे आप नहीं चलाओगे तो ड्राइविंग सीट तो होनी नहीं चाहिए थी। इसमें हाँ बात सही है आपकी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड होल्डर आया था। टैलेंटेड हो, अब हम ये नहीं कह रहे आप टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन ये ड्राइविंग के वो भी मना नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है जैसे कि जैसे अब विदाउट ड्राइवर के भी कार आ रही है ऑटोमेटिक, इसमें ना इसमें एक लेकिन आपकी जो टेस्ला कंट्रोल है आपके पास, वो अगर बगल वाली सीट में हो तो ठीक है। इसमें स्पीड हो गया, ब्रेक हो गया, वो आपके कंट्रोल में है नहीं। आप यहाँ पे बैठे, अब अचानक कोई आ जाए आप कैसे कंट्रोल करेंगे? अभी पुणे से लेके यहाँ तक 4 स्टेट होता है। रिवर्स नहीं आया क्या? नहीं अभी सीधा है। पैसेंजर सीट में बैठ अभी ये सर जी ड्राइवर सीट है और ये बाजू का सीट। और यहीं से हैंडल को ब्रेक कैसे लगाते थे? एक पैर इधर, एक पैर उस तरफ डाला है, जो कि मेरे पैर में क्लच ब्रेक एक्सीलेटर तीनों रहता है। लेफ्ट साइड में जैसे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, कुछ ड्राइविंग सीट स्टीयरिंग के पास है बस। और आप दोनों पैर उधर करके नहीं एक पैर उस तरफ है। और हालांकि हिंदुस्तान का कौन सा भी गाड़ी में वैसे ही चला लेता हूँ, खाली यही कार नहीं। सर पहले भी मीडिया में आपकी कोई क्लिप वगैरह आई है, आपकी वीडियो आई? बहुत सारे आई, बहुत आई इसमें नहीं आपके पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक बच्चा आया था आज से करीब 15 साल पहले, उसका नाम था तथागत अवतार तुलसी। 5 साल की उम्र में वो 10वीं देना चाहता था, 10th क्लास पास करना चाहता था। तो सबने बोला जैसे आप बोल रहे, मैं भी यही बोल रहा था उनको, ये तो कानून के खिलाफ है, कानून में है नहीं। 5 साल का खुद आपकी उम्र, आप 10 साल का 10th कैसे पास करेंगे? वो बच्चा कहा कि मेरे पास टैलेंट है, आपके पास नहीं है, आप नहीं कर सकते, दुनिया नहीं कर सकती, मेरे पास तो टैलेंट है तो मैं करूँगा। तो उसने अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उसको दे दिया मंजूरी, और अबाउट आई थिंक 6 साल की उम्र में 10वीं पास की और 15 साल की उम्र में PhD करके IIT में जाके पढ़ा। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे स्पेशल टैलेंट में सर वो मेमोरी की बात है। नहीं मैं वो नहीं, में जब कानून ही नहीं है नहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कभी कभी कानून तो एक चीज़ होती है कि जो सबके ऊपर लागू होती है। तो ऐसे भी हमारे पास रिकॉर्ड होल्डर हैं जिनके हाथ ही नहीं है, लेकिन उनको स्पेशल परमिशन मिला है, वो भी वैसे ही ड्राइव करते हैं जैसे बाकी लोग ड्राइव करते हैं, लेकिन उससे पहले उनका टैलेंट का पूरा टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि पहली नज़र में तो जिसके हाथ ही नहीं है वो कैसे चलाएगा, है ना। तो इस तरह से कई बार कुछ लोग ऐसे अनयूजुअल होते हैं। आप अगर ऊपर अभी गए होंगे तो देखा होगा कि एक आदमी ने अपने सिर के ऊपर कई सारे मटके लिए थे। तो पहली नज़र में तो लगता है कि ये मटका गिरेगा सभी लोग एक्सीडेंट हो जाएगा। एक लेडी यहाँ पे आई थी, खूब सारे सांप लेके आई थी। कानून के नज़र में सांप लेके घूमना अलाउड नहीं है ना, आप सबको पता है। लेकिन अभी कोबरा भी लेके आई थी, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, कोबरा सांप लेके आई थी। लेकिन उन ऐसे लोगों को स्पेशल टैलेंट के दायरे में लाके उनको खास परमिशन दी जाती रही है ना। खास कभी तो लोकल लेवल पे देते हैं परमिशन जब कन्विंस हो गए, ठीक है ना। चाहे वो सांप वाले इंसान हो, कि वो सांप छूटता तो कोबरा था, काट ही लेता, पहली नज़र में तो आता। या ऊपर जो कई मटके लगा के उसने 15 मिनट तक डांस किया। ठीक उसी तरह से इनका भी जो टैलेंट है, हालांकि जो आपका एक क्वेश्चन है कि लोगों के एक्सीडेंट के चांस बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि जो लोग 2 हाथ और 2 पैर चलाते हैं, ऐसा नहीं कि वो एक्सीडेंट नहीं करते, वो भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमें लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, जो आपका प्राइम कंसर्न है। आपका प्राइम कंसर्न यही है कि लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। सर इनको देख के जिसको भी 18+ को लाइसेंस बन जाएगा, वो इसी तरह ट्राई करने की कोशिश करेगा। हाँ, वो देखिए प्लस एंड माइनस। 18+ कोई मैं नहीं समझता कोई बहुत मैच्योर हो जाता कोई भी, तो वो स्टार्टिंग होती है उसकी, ठीक है ना। जिस तरह से आप यूँ मानिए कि एक जिम्नास्ट होता है जो, या एक सर्कस में करतब दिखाते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो हम उनको देख के हम इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन हम खुद नहीं, मतलब कम से कम मैंने तो सांप नहीं पकड़ा था,
जबकि मुझे लग रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है एंड आई वाज अप्रिशिएटिंग। तो ऐसा नहीं करेंगे सर। मैं सही है, सांप पकड़ना अपने आप को रिस्क में डालना, लेकिन आप उल्टी ड्राइविंग कर रहे हो, दूसरे को रिस्क में डाल रहे हो। हाँ वो बात है। ठीक है ना, मैं सामने आ जाऊँ, मैं उसमें अब स्मोकिंग करते हो आप, पब्लिकली स्मोकिंग प्रोवाइडेड है, ठीक है जी। अब उसका क्या, स्मोकिंग आप कर रहे हो, स्मोकिंग जोन बना, आपको नुकसान है उसका, पब्लिकली करते हो हमें भी नुकसान है। नुकसान है, लेकिन इसीलिए इसमें डिबेटेबल ये है कि हो सकता है कि ही इज मोर कंफर्टेबल व्हेन ही इज इन, इनका काइनेस्थेटिक एबिलिटी कुछ ऐसा ही है कि जितने कंफर्टेबल आप हैं जब आप ड्राइविंग सीट में, उतने कंफर्टेबल ये हैं जब ये पैसेंजर सीट में। बाकी सर लो के अकॉर्डिंग तो चलान होना चाहिए, लो के अकॉर्डिंग चलान होना चाहिए। वैसे ये टैलेंटेड है, ठीक है, ये इतनी दूर से कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी दूर से गाड़ी चला के आएंगे, सबसे गाड़ी चला के आ रहे हैं। ना तो कोई ये सोच सकता है, ना कोई ये सोच सकता है कि एक भी चलान नहीं हुआ, ये भी मिरेकल है जी, है ना। मैं खुद हैरान था, तभी मेरा पहला सवाल था चलान हुआ कि नहीं, आप ही का पहला सवाल था, है ना। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इन्हीं तरह के टैलेंट का एक वो है कि जो दायरे के बाहर जाते हैं, उन्हीं का संकलन है, ठीक है ना। कि दायरे के बाहर नहीं जाएंगे तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, खतरा है, आई एग्री, बट दायरे के बाहर जाने वाले जितने लोग हैं उनका कलेक्शन है ये। तो खैर इसके तहत आप तो ड्राइव करते हुए आए, तो आपका ऑनर हमारे पास है आप सबके बीच में। इनका जो पिछला रिकॉर्ड था जो कि पूरे मीडिया में आया था, उसके लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। प्लीज आप अगर राइट टाइम पे होते तो भी अच्छा लगता, लेकिन ये वीडियो भी लोगों तक पहुंचा देंगे तो थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।